اردو دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ لوگوں کے لیے غازی ناول کا قسط نمبر 32 پیش خدمت ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گاڑی چل پڑی اور ہیڈ کوارٹر پہنچ کر انہوں نے مجھے سیل میں بند کیا اور چلے گئے۔ رات تقریباً 10 بجے تفتیشی ٹیم کا انچارج میرے پاس سیل میں آیا۔ میں نے اسے 5000 روپیہ اور اپنی گھڑی واپس کر دی اور کہا کہ اگر 22 جون کو آپ نے فوجی ہیئر کٹ والے آدمی چاروں طرف پلا دینے ہیں تو پھر 22 جون کو بھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرا کانٹیکٹ اتنے احمق ہے کہ فوجی کٹ دیکھ کر پہچان نہ سکے؟ خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آج وہ بھی آیا ہو یا خطرے کی بو سونگھ کر واپس چلا گیا ہو۔ اب آپ کے پاس 22 جون اس کو پکڑنے کا آخری موقع ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایک تو اپنے آدمیوں کی تعداد کم کرنی ہوگی، دوسرے ان سے کہے کہ وہ مجھ سے دور رہے۔ پلیٹ فارم سے بھاگنے کی 4 امکانی راستے ہیں۔ ایک گھنٹہ چوک کی طرف، دوسرا اور تیسرا پلیٹ فارم کے دونوں جانب اور چوتھا سبزی منڈی والی سڑک۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو ان چاروں راستوں پر اپنی آدمی کھڑے کر دے، لیکن مجھ سے خاصے فاصلے پر رہے۔ ریلوے کے مال ڈبوں بھی آپ کے آدمی کھڑے تھے اور مجھے پلیٹ فارم کے عین سامنے بند گاڑی سے اتارا گیا۔ اگر میرا کانٹیکٹ اس وقت پلیٹ فارم پر کھڑا ہوتا تو آپ کیا توقع کرتے کہ وہ مجھ سے ملنے آتا، بلکہ پورے غائب ہو جاتا۔ ٹیم کا انچارج خاموشی سے میرے باتیں سنتا رہا اور بولا، ٹھیک ہے، پرسوں تمہیں آدھے راستے سے ہی پرائیویٹ گاڑی ٹیکسی میں بٹھا دیا جائے گا، مگر اس کا ڈرائیور ہمارا آدمی ہوگا۔ ہماری نگرانی کرنے والے پوشیدہ جگہوں پر کھڑے ہوں گے اور تمہیں پلیٹ فارم اور اوور ہیڈ برج اور سڑک پر بھی جانے کی اجازت ہوگی۔ تمہارا پیچھا صرف 1-2 افراد کریں گے جن کے ہیئر کٹ فوجی نہیں ہوں گے۔ تم البتہ خیال رکھنا کہ اس دن کی نسبت 22 جون کو ڈبل 4 سول کپڑوں میں ان راستوں پر کھڑی ہوگی جن سے فرار ممکن ہے۔ اپنی ٹیم کے ممبران کی مرضی کے خلاف میں تمہارے ساتھ رعایت برت رہا ہوں۔ اگر تم نے بری رعایت کے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو پھر تم خود حالات کے ذمہ دار ہوگے۔ جتنے تحمل اور بربادی سے تمہیں یہ مہلت ملی ہے، اتنی ہی زیادہ تمہیں اذیت دی جائے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش اور مستقبل سے مایوس ہو گیا۔ اگتے وقت اس نے پرسوں 8:30 بجے صبح مجھے تیار رہنے کی ہدایت کی اور مجھ سے باتیں ملاتے ہوئے ہوپ کی بسٹ کہہ کر چلا گیا۔ شاید اس نے میرے چہرے پر مایوسی کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ میرے وہ رات اور اگلے دن بہت بے چینی سے گزرا۔ فرار میں کامیابی کے بہت کم چانسز تھے۔ میرے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ پل کے دوسری جانب سڑک پر گزار سکتا تھا۔ اس دوران کسی ٹرک کا اس سڑک پر آنا اور میرا نگرانوں کا حساب توڑ کر ٹرک کے پیچھے لٹک جانا اور میری روڈ پر ٹرک چھوڑ کر رش میں گم ہو جانا اور اس سارے عمل میں نگرانوں کا مجھے پکڑ پانا کسی من گڑت افسانے میں کسی سپرمین کے لیے تو بہت معمولی سی بات ہے، مگر ایک نارمل انسان کے لیے عملی طور پر اس میں کامیاب ہونے کے بہت کم مواقع ہوتے ہیں۔ اور پھر 22 جون میرے لیے آخری موقع بھی تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے بعد نہ تو میری بات پر یقین کیا جائے گا ورنہ مجھے دوبارہ ایسا کبھی موقع ملے گا۔ اس موقع میں میری کامیابی کا چانس 5% تھے اور نگرانوں کی گولیوں سے مرنے کے 95% تھے۔ گرفتاری کے باعث میں پاکستان کے لیے اس وجہ سے بیکار ہو چکا تھا کہ مزید کوئی مشن نہ کر سکتا تھا۔ میری درجنوں تصاویر اتر چکی تھی، میری کور سٹوری ختم ہو چکی تھی اور میرے اپنے محکمے کے لیے عضو بیکار بن چکا تھا۔ ایک کانٹے چبھنے کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کسی دوسرے انسان کو تفتیش ٹیم کے رویے سے ہوتی ہے۔ وہ میری زبان کھلوانے کے لیے تشدد کا ایسا سلسلہ شروع کرنے والے تھے جس میں مجھے میجر احسن کی طرف پاس ٹارچر کے ذریعے جلد موت نہ ملتی۔ میجر احسن کی شہادت کامیابی اور ڈی ایم آئی کی ناکامی تھی۔ اب ڈی ایم آئی والوں نے مجھے زندہ رکھ کر تشدد کا ہر حربہ آزمانا تھا تاکہ میں اپنی زبان کھول دوں۔ فرار کے منصوبے میں ناکامی کی صورت میں نگرانوں نے مجھے گولیاں مار کر وہی شہید کر دینا تھا۔ دونوں صورتیں میرے لیے ذریعہ نجات تھی۔ میں اپنی موت کو آخری تحفہ سمجھ کر وطن عزیز کو پیش کرنا چاہتا تھا۔ شام کے کھانے کے ساتھ مجھے میرے کپڑے، جوتے، گھڑی اور دیگر سامان بیچ دیا گیا تھا۔ میں نے اس رات کا خاصا حصہ اللہ کی عبادت کرنے میں گزار دیا۔ صبح سے پہلے میں تیار ہو گیا۔ 9 بجے گارڈ مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے بند گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر گاڑی چلنے کے بعد رکی، میرے آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی اور مجھے 5000 کی گڈی بھی دے دی گئی۔ یہ نیو دہلی میں جن پٹ کا علاقہ تھا۔ بند گاڑی ایک ٹیکسی کے قریب رکی۔ مجھے ٹیکسی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا گیا۔ اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان پائیدار پر ایک شخص منجی سا بیٹھا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے مجھ پر پستول تان لیا اور اگلی سیٹ کے فرش میں جڑی ایک زنجیر کی ہتھکڑی جیسا کنڈی میرے ایک ٹانگ میں ڈال کر مجھے باندھ دیا اور ٹیکسی سبزی منڈی ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ ٹیکسی سے آگے
एक कार जा रही थी, जिधर वो कार मुड़ती इधर इधर टैक्सी मुड़ जाती। टैक्सी और कार की रफ्तार भी एक जैसी थी। यकीनन वो कार DMI की थी। मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा तो लेटे शख्स मुझे कहा कि बस सामने देखो। अपनी ज़हनी कैफियत तो पहले बयान कर चुका हूँ, लेकिन मैं खुद अपनी मौत के असबाब करने जा रहा था। मैंने इस शख्स से कहा कि मैं पीछे देखूंगा कि आगे देखूंगा, मैं तुम में हिम्मत है तो मुझ पर गोली चलाओ, कहकर अंजाम से लापरवाह होकर पीछे देखने लगा। पीछे DMI की 2 गाड़ियां थी जो हमारा पीछा कर रही थी, और मैं दिल में अपने इस पहले और आखिरी प्रोटोकॉल को देखकर हंस पड़ा कि मैं इतना अहम तो था कि 3 गाड़ियां आगे पीछे मेरी हिफाजत कर रही थी। और स्टेशन पर भी दर्जनों अपराध मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर आगे और पीछे हिफाजती गाड़ियाँ न होती तो फिर मेरे लिए बहुत आसान था। लेटे हुए शख्स से पिस्टल छीन दोनों की मौत की गांठ उतारना और फिर चाबी भी उन्हीं के पास होगी से कड़ा निकाल कर फरार होना, इस सारी कार्रवाई में 3 मिनट लगते। लेकिन इन हिफाजती गाड़ियों की वजह से अगर मैं ऐसा करता तो यकीनन इस वक्त मुझे या ख़त्म कर दिया जाता या मुझे ज़दकूब करके वापस ले लिया जाता। सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन की पार्किंग में टैक्सी जाकर रुकी, लेकिन मुझे कड़े से वक्त तक आज़ाद न किया गया जब तक का पीछा करने वाली हिफाजती गाड़ियाँ पार्किंग में आकर न रुक गई और मैं इनसे 12-13 अपराध निकलकर इर्द गिर्द न फैल गए। कड़े की चाबी ड्राइवर के पास थी। कड़ा खुलने के बाद मैं टैक्सी से निकला और आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ प्लेटफार्म की तरफ चल पड़ा। मैंने कई बार प्लेटफार्म की सीढ़ियों पर जूतों के तस्मे बांधने के बहाने पीछे देखा। निगरान मुख्तलिफ जगहों पर खुद को छुपा चुके थे और शायद इस इंतजार में थे कि मैं प्लेटफार्म पर चला जाऊं और एक एक करके अपनी मखसूस जगह पर पहुंचकर छुप जाए। प्लेटफार्म के अंदर भी मुझे फौजी कट वाले अपराध दिखाई न दिए। मैं बहुत आहिस्तगी से और बुर्ज की तरफ बढ़ने लगा। प्लेटफार्म पर बुक स्टॉल और चाय शॉप पर मैंने 6-7 आदमी को देखा जो मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने आगे बढ़ के अचानक पीछे चलना शुरू कर दिया। इनकी निगाहें मेरा ताक़ुब कर रही थी। ये लोग DMI के फील्ड एजेंट है। निचले रैंक के इन सिपाहों को चाहे जितना भी समझा जाए ये कहीं नहीं कहीं अपनी असलियत जाहिर कर ही देते हैं। मैंने मुस्लिम पानी की मटकों से पानी पिया और फिर पुल की तरफ चल दिया। पुल की दूसरी जानिब सीढ़ियाँ उतरने तक मैंने 16 ऐसे आदमी मार किए जो बिलावजह वहाँ खड़े थे और मुझ पर नजरें गाड़े हुए थे। 6 मिनट मैंने सड़क के मोड़ पर खड़े होकर सड़क का जायजा लिया। सड़क की दोनों जानिब छोटी छोटी दुकानें थी और इन पर भी गाहक ऐसे खड़े थे जो सामान खरीदने के बजाय मेरी तरफ देख रहे थे। मैं वापस पलटा और पुल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मेरे बयान के मुताबिक कॉन्टेक्ट ने मुझे पुल या प्लेटफार्म पर मिलना था। पुल के ऊपर निगरानी करने वाले जो 2 खड़े थे, कम तालीम याफ्ता हवलदार या सिपाही के ओहदे के। ये लोग सिर्फ आर्डर मिलने पर ही हरकत करते हैं। मेरी निगरानी करने के अहकाम की पेश नज़र उन्होंने 1 मिनट के लिए भी मुझसे नज़र न हटा रहे थे। मेरे प्लेटफार्म पर आ गया। बुक और चाय स्टॉल पर अभी तक वही लोग खड़े थे। मैं बुक स्टॉल पर खड़े एक शख्स को पास पहुंचा और सरगोशी में कहा कि मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत है, मेरे साथ वेटिंग रूम तक चलो। वो हैरान व परेशान मुंह पाड़े मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे कहा कि अगर तुम न गए तो तुम्हारे अफसर तुमसे बहुत नाराज़ हो गए कि तुम मेरी निगरानी करने के बावजूद तुम मेरे साथ नहीं गए। मैं उसे ये कहकर वेटिंग रूम की जानिब चल दिया। चंद कदम चलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो इसके साथ खड़ा दूसरा शख्स दोनों मेरे पीछे आ रहे थे। मैं सीधा टॉयलेट में गया और चंद मिनट बाद फारिग होकर बाहर आ गया। वेटिंग रूम में वो दोनों खड़े थे। मेरे बाहर निकलने पर वो भी मेरे पीछे पीछे वेटिंग रूम से बाहर आ गए। मैं सीधा प्लेटफार्म पर गया और मैंने उन्हें कहा कि अब पहले की तरह फिर यही खड़े रहो। ये कहकर मैं फिर पुल की जानिब बढ़ गया। पुल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैंने पीछे देखा तो वो दोनों स्टेशन मास्टर के दफ्तर में दाखिल हो रहे थे। इस मिशन को मॉनिटर करने इनका सीनियर यकीनन स्टेशन मास्टर के दफ्तर में बैठा हुआ था। मैंने पुल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फैसला कर लिया कि इस बार फरार की लाजिमन कोशिश करूंगा। टाइम भी कम रह गया था। 10:30 से कुछ मिनट ऊपर हो चुके थे और 11 बजे उन्होंने मुझे वापस ले जाना था। मैं पुल की दूसरी जानिब सड़क के मोड़ पर आ गया। अब मुझे मेन रोड की तरफ जाने वाले ट्रक की तलाश थी। थोड़ी देर बाद एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। जो ट्रक नजदीक पहुंचा मैंने फिर से ट्रक के पीछे भागकर इसकी तख्ते को पकड़ लिया और इतनी देर में ट्रक मोड़ काट चुका था और इसकी स्पीड बढ़ चुकी थी। निगरानों को पहले तो कुछ समझ न आया, फिर सीटियां बजने की आवाज़ आने लगी और साथ ही गोलियां चलने की आवाज़ भी आने लगी। मैंने ट्रक पर चढ़कर पीछे देखा तो सिविल ड्रेस में गार्ड ट्रक के पीछे भाग रहे थे और शोर कर रहे थे। मेन रोड आते ही ट्रक आहिस्ता और मेन रोड ट्रक से छलांग लगाए और मेन रोड पर बाएं जानिब भागना शुरू कर दिया। तब शीशरूम में जो मुझ पर तशद्दुद हुआ था इसकी वजह से मेरी टांगों में दर्द उठने लगा था।
मेरा पीछा करने वाले मेन रोड तक पहुंच चुके थे और दर्द की वजह से मेरे लिए तेज भागना मुश्किल हो रहा था। मेन रोड पर एक पीपल का दरख्त था। मैंने इसके नीचे पहुंचकर पीछे देखा तो निगरान मुझे नजर न आए। अलबत्ता दो गाड़ियां बड़ी तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। मैंने ट्रैफिक से भरी सड़कों को इतनी तेजी से क्रॉस किया कि कई गाड़ियों को एक्सीडेंट से बचने के लिए ब्रेक्स लगानी पड़ी। सड़क के दूसरी जानिब पहुंचते ही मैंने भागना शुरू कर दिया। मेरी तरफ आने वाली गाड़ियां सड़क के बाएं जानिब थी, जबकि मेरी सड़क के बाएं जानिब आगे की भाग रहा था। 50 कदम के फासले पर एक प्राइवेट गाड़ी फुटपाथ पर रुकते देखा। अगरचे मेरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन हालात के पेश नज़र मैंने सोचा कि अगर मैं ये गाड़ी छीन लूँ तो मैं ताक़ुब के अपोजिट चलाना शुरू कर दूँ तो इनको यू टर्न लेने तक मैं इनसे काफ़ी फासले पर पहुँच चुका होगा। ताक़ुब करने वाली गाड़ियां बिल्कुल मेरी दूसरी तरफ सामने से पहुंच चुकी थी। इधर टैक्सी ड्राइवर अभी गाड़ी से बाहर निकला ही तक कि मैं इसके सर पर पहुंच गया। हथियार मेरे पास नहीं था। मैंने इसकी कनपट्टी पर जोरदार ज़रब लगाया और वो लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर गिर गया। मैंने उसके हाथ से चाबी छीनी। अभी मैं गाड़ी में दाखिल हो रहा था कि अचानक गोली चलने की आवाज़ आई और मेरे दाएं पंडली में ऐसी लगी जैसे किसी ने गर्म सलाख चबूदी हो। मैं गाड़ी स्टार्ट कर ली। गाड़ी को सड़क पर डालते हुए मैंने देखा कि दो आदमी सड़क को आधा क्रॉस कर चुके थे और जो इनके सामने ट्रक गुजरती वो मुझ पर फायर कर देते। मैंने गाड़ी पूरी रफ्तार से चला दिया और पुल वाले सड़क से काफ़ी आगे निकल आया। मैंने बैक शीशे से देखा तो मुझे दो गाड़ियां पूरी तेज रफ्तारी से अपने पीछे आती दिखाई दे रही थी। मैंने एक्सीलेटर पर पूरा दबाव डाल दिया, लेकिन गाड़ी की जितनी स्पीड थी इसी हिसाब से चलती रही। पीछा करने वाली दोनों गाड़ियां बिल्कुल मेरे पीछे पहुंच चुकी थी और हमारे दरमियान अब कोई रुकावट न। पिछली गाड़ी से किसी ने मुझ पर फायर से खोल दिए। चंद लम्हों बाद मेरी गाड़ी के दोनों पिछले टायर ब्रस्ट हो गए और गाड़ी की स्पीड कम होने के साथ साथ लड़खड़ाने लगी, लेकिन मैंने स्टीयरिंग पर काबू पाकर गाड़ी को उलटने से बचा लिया। मैंने ब्रेक लगाकर गाड़ी रुकी और स्टीयरिंग पर से रख दिया। मेरे कामयाबी नाकामी में बदल चुकी थी। तफ्तीशी टीम ने मेरे वहम गुमान से भी ज़्यादा हिफाजती इक़दाम कर रखे थे। पिल वाली सड़क जहाँ मेन रोड से मिलती थी वहाँ दो मुसल्लक गाड़ियाँ आपस में मुखालिफ सिफत में खड़ी थी। दोनों का स्टेशन मास्टर की दफ्तर में टीम इंचार्ज से वॉकी-टॉकी पर राबिता था। दोनों गाड़ियां मेरी गाड़ी के दाएं बाएं रुके और मुझे खींच कर गाड़ी से बाहर निकाला गया और एक गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया गया। दो गार्ड मेरे दाएं बाएं बैठ गए। मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए और आंखों पर सियाह पट्टी बांध दी गई। आगे वाली सीट पर इनका कोई अफसर बैठा था जिसने वॉकी-टॉकी इत्तला के सर हमने उसे पकड़ लिया। मेरी टांग में गोली लगने की वजह से दर्द हो रहा था, मगर मैंने जुबान को तांदू के नीचे देकर दर्द पी गया। गाड़ी चल पड़ी। मेरा मंसूबा नाकाम हो चुका था, लिहाजा अब मैंने खुद को हालात के रहम मुकरम पर छोड़ दिया। मंसूबा में नाकामियाँ और गोले लगने की दर्द की वजह से मैं नीम गंदगी की हालत में था। मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी को फांसी के फंदे की तरफ ले जा रहा हो और अब मुझ पर तशद्दुद के नए तजुर्बे किए जाने दे। न मालूम किस वक्त गाड़ी रुकी। मुझे धक्का देकर बाहर निकाला गया। फिर मुझे ताला खुलने की आवाज़ आई। बगैर मेरे हाथों और आंखों पर पट्टी खोलकर मुझे इतने ज़ोर से धक्का दिया गया कि मैं सामने वाली दीवार से जा टकराया। मेरा सर दीवार के साथ लगा और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। दर्द की वजह से मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। मैंने 2-3 बार पानी मांगा, मगर किसी ने जवाब न दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से दीवार के साथ टेक लगाई। हाथ पीछे बंधे होने की वजह से मैं लेट भी नहीं सकता था। हाथ से टटोल कर देखा तो मुझे पता चला कि मैं ईंटों के फर्श पर पड़ा हूँ। पंखा भी कोई नहीं था और कमरा गर्मी से तप रहा था। न मालूम मैं कितनी देर ही पड़ा रहा। टांग में गोली लगने की वजह से सारे टांग में दर्द हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से जख्मी टांग को हिलाया और इसे 2 बार फोल्ड किया। ऐसा लग रहा था कि मेरी टांग के सामने का गोश्त और हड्डी का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया है, लेकिन टांग की हड्डी पूरी तरह टूटने से बच गई थी। मैं दाएं करोट लेटने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ पीछे बंधे होने की वजह से मेरे बाजू ज़्यादा देर मेरे जिस्म का वजन सहार न सके। लिहाजा मैंने टेक लगाकर बैठ जाने में ही अबियत जानी। खून बहने की वजह से मुझ पर ख़नूदगी सितारे होने लगी थी। नामालूम कितनी देर में यूं ही पड़ा रहा कि 3-4 टिड्डे लगने से मैं होश में आ गया। मुझे खड़ा होने को कहा, लेकिन बावजूद कोशिश के मैं खड़ा न हो सका। इस जुर्म की पादाश में मेरे चेहरे और जिस्म पर टिड्डों की बारिश कर दी गई। फिर भी मैं खड़ा न हो सका तो मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझसे खड़ा नहीं होगा और उनके साथ चलाया गया था। वो मुझे घसीटते और धकेलते हुए किसी तरफ ले गए। इस हालत में मुझे किसी दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया।
थोड़ी देर बाद मुझे एक करख्त आवाज़ आई कि क्या तुम अपने पहले वाले बयान में कुछ तब्दीली या इजाफा करना चाहते हो या इस पर कायम हो। मैंने जवाब दिया कि मेरा पहले वाला बयान ही सच पर मुबन्नी था। तो इसने कहा कि सवाल किया कि तुमने भागने की कोशिश क्यों की, क्या तुम समझते थे कि अपनी इस अहमकाना कोशिश में कामयाब हो जाओगे। मैंने उसके सवाल का जवाब दिया कि फरार होने की कोशिश मेरा हक था और मैंने कोशिश की, कामयाबी और नाकामी तो बात की बात है। मेरा जवाब सुनकर वो भड़क उठा और बोला, अब अपना हक इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोनों बाजू के दरमियान से एक मोटा राड गुजारा किया। मेरे हाथ पीछे बंधे थे और आंखों पर सियाह पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए सिर्फ महसूस ही कर सकता था कि राड की दोनों सरों पर कुंडे और बीच लगने की आवाज़ आई और राड ने मुझे ऊपर उठाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे पाँव ज़मीन से उठ गए। मेरे जिस्म का सारा बोझ मेरे बगलों और कंधों पर पड़ गया। ऊपर उठाए से उन्होंने एक मजबूत रस्सी मेरी बंधी हुई कलाइयों के दरमियान गुजार कर मेरी पीठ के साथ बांधी थी। मेरे जिस्म के वजन की वजह से राड मेरे बगलों और पीठ के अंदर घुसा जाता था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे होने वाली अजियत की वजह से निकलने वाली चीख को रोक रखा था और हर चीख को अल्लाह में बदल कर मुंह से निकाल रहा था। राड के दबाव की वजह से मेरे पटे बेजान हो रहे थे और मुंह से सिर्फ अल्लाह की आवाज़ निकल रही थी। बुतपरस्त बना अपने दरमियान अल्लाह सुनने की ताब कहा रखते थे। उन्होंने मेरी टांगों पर हंटर मारने शुरू कर दिए। चंद लम्हे बहुत दर्द हो मगर अल्लाह का अरसा से मेरा दिमाग सुन होता चला गया और लम्हा लम्हा दर्द का एहसास कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं बेहोश हो चुका था और न जाने कितनी देर ही वो मेरे जिस्म को तख्ता सितम बनाते रहे। मुझे होश आया तो मेरे हाथ खुले हुए थे और मेरी आंखों की पट्टी भी उतर चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मैं आंखें खोलने के काबिल हुआ। मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द से पटा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने गर्दन घुमाकर दोनों तरफ देखा। ये 10 बाई 8 फुट का सेल था। मैं फर्श पर पड़ा था। सामने मजबूत सलाखों वाला बड़ा दरवाज़ा था और बरामदे में 2 मुसल्लह गार्ड स्टूल पर बैठे मेरी निगरानी कर रहे थे। कमरे में एक कोने में पानी का गड़ा और प्याला था। रफ़ा हजत के लिए टूटे हुए गड़े का एक हिस्सा एक कोने में पड़ा हुआ था। दिन ढलता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि तशद्दुद वाली रात के बाद ही अगला दिन था या दूसरा। मेरी टांग के जख्म पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं बड़ी मुश्किल से खुसकता हुआ गड़े तक पहुंच गया और पानी पिया। जख्मी टांग से खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। जब मैं वो खून के निशान पर से होते हुए सील के दरवाजे बाहर बनी हुई नाली में पहुंच चुके थे। इस सील के बाहर कोई चारदीवारी न थी। सामने कोई 50 फुट के फासले पर टॉयलेट्स की कतार थी, जिसके पीछे एक और ऊंची दीवार थी जिस पर खारदार तारों की बाड़ लगी हुई थी। पहरेदारों ने मुझे पानी पीते हुए खामोशी से देखा। मैं घसीटता हुआ फिर सील के दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मेरे दोनों बाजू राट की वजह से बेजान हो चुके थे और मैंने बहुत मुश्किल से कड़े से पानी निकाला था। मैंने बाजू को हरकत के काबिल बनाने के लिए हाथों को मुट्ठियाँ खोलनी और बंद करनी शुरू कर दी ताकि बेजान पट्टू में हरकत करने से जान पड़ सके। पानी पीने के बाद मुझे पेशाब की हाजत हुई तो मैंने गार्ड से पेशाब का कहा तो इसने कहा कि दरवाजे वाली दीवार के साथ कर लो और बाद में इस पर पानी बहा दो। मजबूरी थी, मुझे ऐसे ही करना पड़ा। मुझे पेशाब के साथ खून भी आया। शायद उन्होंने मारते वक्त ये नहीं देखा था कि कहाँ मारना है। शाम डलते ही दाल और रोटी पर मुश्तमिल खाना आ गया। गार्ड ने अपनी औकात दिखाई और जानबूझकर जहाँ मैं पेशाब करके पानी बहाया था इस जगह से मुझे दाल पकड़ाई और फिर रोटी पकाते हुए जानबूझकर नीचे गिरा दी। मैंने ऊपर वाली रोटी जो कि सख्ती खाई और बाकी दाल और दूसरी रोटी गार्ड को वापस कर दी। चपाती खाते हुए मुझे हर नवाले में कर्च कर्च की आवाज़ आती थी। फरार के बाद बम्बई में मेडिकल चेकअप करने से पता चला कि मेरी इंद्रियों और मैदे से शीशे की बारीक ज़रात चबे हुए हैं। रात को फिर हाथों में रस्सी और आंखों पर पट्टी बांधकर टॉर्चर सील में ले जाया गया था। वहां जाकर मेरी आंखों से पट्टी उतार दी गई और टांग जख्मी होने की वजह से मुझसे कड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तफ्तीशी टीम के मेंबर नए थे। टीम के सरबराह ने मुझसे पूछा कि तुम कुछ कहना चाहते हो। मैंने कहा हाँ, तुम सुअर की औलाद हो। मैं चाहता था कि वो तेश में आकर मुझ पर पूरी तशद्दुद शुरू कर दे ताकि तशद्दुद से जल्दी बेहोश होकर जान छूट जाए और वो गुस्से से उठने लगा, लेकिन साथ वाले उसे पकड़कर बैठा लिया और कहा कि फिक्र न करो, हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। उसके कहने पर गार्ड मुझे एक लंबी मेज पर ले गए जिस पर लुटाकर मेरा जिस्म सर और पाँव से चमड़े की रस्सियों में इस तरह बांधा गया कि मैं ज़रा भी हरकत न कर सकूं। फिर कान में गीला करके एक क्लिप लगा दिया गया जबकि दूसरा क्लिप मेरे पोशीदा अज़ू पर। ये 3rd डिग्री टॉर्चर था जिसका मुझे निशाना बनाने जाने लगा था।
मुझे इलेक्ट्रिक झटके देने के लिए मेरे जिस्म पर लगे गए क्लिप को बिजली की तारों के साथ मुंसलिक कर दिया, जिनके सर एक मशीन से जैसे गालिबन मैग्नेटोफिल्ट्री कहा जाता है में लगे हुए थे। इस मशीन के हैंडल को घुमाने से 400 वोल्ट से भी ज़्यादा बिजली निहायत मुख्तसर वक्त और वक्फों से पैदा होती है। ये मुख्तसर वक्त के झटके इंसान को हलाक तो नहीं करते, लेकिन इतने तकलीफ देह और अजियतनाक ज़रूर होते हैं कि जिस्म कलम से लिखना नहीं जा सकता। मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया और मशीन के हैंडल घुमाया जाने लगा। इतनी हाई वोल्टेज के बिजली से मेरे जिस्म को दागा जा रहा था। पहले झटके से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा कलीजा और दिल मेरे हल्क में आ गए। इंतहाई मजबूती से बंधे होने के बावजूद हर झटके से मेरा जिस्म थरथराता और कई इंच मेज समेत ऊपर उठता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा दौरान खून रुक गया है और दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। मेरी आंखें तकलीफ की शिद्दत से बाहर आ रही थी और दिमाग की नसें पट रही थी। मेरा सांस रुक रहा था। न जाने कितनी देर मुझे बिजली के झटके दिए जाते रहे, क्योंकि जब मुझे होश आया और मैं देखने के काबिल हुआ तो मैंने अपने सील में था और सूरज की रोशनी फैली हुई थी। मैं देख सकता था, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ और मुझ पर क्या गुजरी थी। काफ़ी वक्त इसी की पेट में गुजर गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हवास बहाल होना शुरू हो गए और याददाश्त जो ख़त्म हो गई थी लौट आई। मेरा सर दर्द से पटा जा रहा था। जिस्म के एक एक हिस्से में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सुइयां चबू दी गई हो। तो दोस्तों, आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। तब तक अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।